Hello. Thank you very much. Thanks, Indie Journal, for having these topics in this conclave, because this is one of the most important topic, and we see that since morning this session is having a talk on this topic only. Means in the first session of the editors also we had the topic about the diversity in media. Automatically it came, and this is such a topic in India where nobody talks about it. You will know, you won't find it in the media coverage. You won't find it in the public platform or even in the social media. You won't find it. So this is the reality of this topic, and in this discussion I would like to focus on four things. The first of all, why diversity is important in the newsroom. That's the one thing. Is there diversity in the newsroom or not? Obviously we can, all of us will agree with that there is no diversity. Third is, what will happen if diversity is there? Means what importance it can bring to the newsroom and to the journalism also. And the fourth one is, how can we do it? So I think the fourth one is very important, because on most of the things all of us will be agree that yes, diversity is important and there is a lack of diversity, and how diversity plays an important role in covering the topics in a wider way. But the fourth thing, that how we can do it, that's the bigger question, I think. If we look at the current scenario in the Indian media, we see that the diversity is very rare in the newsroom. And I will say that the performance of journalism, which we call fourth pillar, is quite poorer if we compare with the other three pillars. If we look at the politics, there is a good representation. In the judiciary, in the bureaucracy, there is a representation. But in case of media, the representation of different groups, scheduled caste, scheduled tribes, minorities, women, is very, very poor. And I think that is the thing of the concern. See, this is not the only thing that is limited to India only. I think it's a global thing. कैथरीन वाइनर करके गार्डियन की संपादक है, आप सब जानते होंगे. उन्होंने 10 साल पहले लिखा था, गार्डियन के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. उन्होंने कहा था कि किस तरीके से यूके के न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी नहीं है. वहाँ पे जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, दोज हु आर फ्रॉम द प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, दे आर मोस्टली देयर इन द न्यूज़ रूम, and they are leading the newsroom, they are finalizing the agenda, and how it is affecting the actual journalism over there. So ये global crisis है, और हमारे लिए ये crisis ज़्यादा बड़ा है क्योंकि हमारे हर चीज़ में वहाँ पे सिर्फ क्लास का डिफरेंस है. हमारे यहाँ क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, रीजनल ये है, अर्बन और रूरल ये डिफ्रेंशिएशन है हमारे यहाँ पे. तो ये अलग अलग लेवल पे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी लैकिंग है. अभी अगर हम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों चीज़ों को देखें, मैं इन तीनों के बारे में बात करूँगा. इंग्लिश में आप देखेंगे तो आप रेयरली कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का पत्रकार वहाँ पे आप देख सकते हैं. हिंदी में गंभीर स्थिति है, जितना मैं जानता हूँ, मतलब बहुत गंभीर स्थिति है. मराठी में अगर आप देखेंगे तो मराठी में आपको शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ हद तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट चला है, अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उस बैकग्राउंड से आने वाले काफ़ी लोग पत्रकारिता में है, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है. लेकिन मराठी में आपको आदिवासी पत्रकार बहुत कम मिलेंगे. सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको आदिवासी पत्रकार रियरली मिलेंगे. मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले काम करता था, हम लोग ने एक कोशिश की थी कि एक शेड्यूल ट्राइब से हम लोग को पत्रकार चाहिए था, और हमें ढूंढकर भी उस वक्त मिला नहीं, बहुत एफर्ट्स लेने पड़े थे. अब इसमें मराठी में अगर ये चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मराठी में बाकी डीनोटिफाइड ट्राइब्स और जो अलग अलग घुमंतु जातियाँ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है. यहाँ पे पारधी करके कम्युनिटी है, मैंने आज तक कोई पारधी पत्रकार देखा नहीं है. तो वहाँ के जो ये अलग अलग मराठी में भी अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट का ठीक ठाक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वो भी एडिटोरियल लेवल पे बहुत कम है. लेकिन बाकी जो तबके हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही पुअर है.
ये क्यों जरूरी है कि वहां पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? हम सब लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिप्रेजेंटेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अभी जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो एक्चुअल इश्यूज के पास नहीं पहुंचते हैं, उन तबकों के इश्यूज के पास तक नहीं पहुंचते हैं। हमारा कई बार जो है जो अप्रोच है वो ऊपर से देखने का होता है, जो अपर कास्ट अर्बन मेल डोमिनेटेड हमारा न्यूज़ रूम है उसकी वजह से हुआ है। और इस वजह से जो एक्चुअल जर्नलिज्म होना चाहिए, जिस तरीके से टॉपिक्स कवर होने चाहिए, नहीं होते। और ये बहुत बड़ी समस्या आजकल हम देखते हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के और क्राइसिस है, जहाँ पे मीडिया के क्राइसिस के बारे में हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म गिरता जा रहा है, प्रेशर है, आपको इंडिपेंडेंस नहीं है, लिबर्टी नहीं है, उस तरीके से उसमें ये क्राइसिस और बड़ा है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है। और इस वजह से हम लोग जो एक्चुअल जर्नलिज्म करने के लिए जो हमारे सामने एक बड़ा रोड़ा है वो है डाइवर्सिटी का लैकिंग होना। मुझे लगता है इसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो टारगेटेड करने होंगे। अगर हम ये बोलते रहेंगे कि यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम तो जिस प्रोसेस से करते हैं उसी प्रोसेस से करेंगे। तो आपको अफर्मेटिव एक्शन लेना होगा कि इस तरीके के इस तबकों के लोगों को जाके ढूंढ के आपको लाना होगा। इसके लिए एक ड्राइव करना होगा कि आप अलग अलग इलाकों में जाए। वी शुड गो टू द प्लेसेस, वी शुड गो टू द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड फाइंड आउट द ट्राइबल जर्नलिस्ट, और अलग अलग जगहों से जाके हम लोग को लाना पड़ेगा, तभी जाके ये न्यूज़ रूम जो है हमारा रियल सेंस में डाइवर्सिफाइड हो सकता है। अब उसमें दूसरा एक सबसे अहम मुद्दा मैं रखना चाहूंगा, मेरी बात लास्ट में। ये होने के बाद और एक क्राइसिस है कि अभी जितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे डाइवर्सिटी के अंदर, कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी से, वो कितना अपने या अपने आजू बाजू के लोगों का इशू वहां पे उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। मैं आज इतने 20 साल हो गए मुझे, बहुत मतलब जैसे कमलेश ने कहा कि बहुजन जर्नलिस्ट बहुत है यहाँ पे, जिनको जो कोई किसान के बेटे हैं, इस तरीके के हम्बल बैकग्राउंड से भी आए हुए लोग हैं, लेकिन वो सही में वहां पे जाने के बाद उन इश्यूज को उठाते हैं क्या? और ये भी हम लोग को देखना होगा, उसके लिए अलग से एफर्ट्स लेने होंगे। हालांकि वो नहीं उठा पाते, उसकी कुछ रीजंस है। जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस न्यूज रूम में होते हैं, उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर टाइप रहता है, और उस प्रेशर के वजह से वो सोचते हैं कि यार मैं ये इशू वहाँ पे नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन वो करेज लाना होगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से नहीं होगा। जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कर रहा है जिस तबके का, उसको उसके तबके के इश्यूज भी वहाँ जोर शोर से उठाने होंगे, तभी सही मायने में मुझे लगता है जर्नलिज्म सही हो सकता है। और मुझे लगता है इसी इशू के लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं शुरू करूंगा महताब जी आपसे। महताब जी, आप नेशनल लेवल पे काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि हिंदी पत्रकारिता में खास करके किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है और वो क्यों नहीं है? शुक्रिया। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलूँगा। मैं इस पे बात नहीं करूँगा कि रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। सुबह के सत्र में उर्मिलेश जी ने हिंदी में रिप्रेजेंटेशन की क्या सूरत हाल है उसके बारे में बताया। अभी जो हमने वीडियो देखा उससे भी जग जाहिर है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ representation of marginalized communities in newsrooms. And when we talk about newsrooms, it's essentially the mainstream newsrooms, big media houses, not the Mook Nayak, not the News Laundry. I mean, these are, I would say, are ये टापू हैं, छोटे छोटे अलग अलग टापू हैं जो मेन है। क्योंकि हमको ये भी समझना होगा, कई दफ़ा हम इसको लेकर के बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने सारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे दलित से ब्लॉगर्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम जिसके बारे में हम कहते थे कि जब इंटरनेट आएगा और इंटरनेट आया तो उससे इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, हकीकत ये है कि अभी भी जो सबसे बड़ा डिजिटल प्रेजेंस है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ही है। तो वो समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन टापुओं की बात नहीं करूँगा। हाँ, तो मेरे तो हम जानते हैं। फिर संग्राम ने भी बताया कि रेडियो का क्या हाल है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। इसलिए भी नहीं करेंगे कि लगातार हम सिर्फ उस पर ही बात करते रहे हैं।
जो दूसरी चीज जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि एक तो ये है कि क्यों नहीं होता और दूसरा ये है कि कैसे हुआ है। आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि जो लोग उन कम्युनिटीज से आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑफ कोर्स उनकी बनती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी सिर्फ 10-15% बनती है, ज़्यादा किसी और की बनती है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर हम हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरे लैंग्वेजेस की बात करें, और मैं अपने इस अनुभव से भी बता सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों में एक मीडिया फेलोशिप प्रोग्राम का मैनेजिंग एडिटर रहा हूं, जिसमें हमने 7 भाषाओं में, जिसमें मराठी भी इंक्लूडिंग है, मराठी, मलयालम, अंग्रेजी, नागमीज, उर्दू, हिंदी, इन सब में हमने फेलोशिप दिए। कोई 180 फेलोशिप हमने दिए हैं। तो वो भी एक अनुभव है मेरा, और उसमें हमारा एक था कि डाइवर्सिटी मेंटेन करना है। पिछले 10 सालों में और कुछ सालों में डाइवर्सिटी एक बहुत फैंसी वर्ड है। एवरीवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, हर एक कोई इसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन अभी भी उसके बारे में जो हमारी अवधारणा है, सोच है, वो एक चैरिटेबल है कि आपको एक बॉक्स टिक करना है। हाँ, कि हमारे पास 2 मुसलमान हो जाएं, एक दलित हो जाए, एक ट्राइबल हो जाए, एक महिला हो जाए। 2 मुसलमान कर रहे हैं तो हमारी कोशिश हो कि एक मुस्लिम महिला होनी चाहिए। हाँ, अगर हम 4 कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि 2 पसमानदा हों, एक जो है दूसरे इलाके महाराष्ट्र से आ जाए, एक यूपी से आ जाए। तो हमारा वहीं मतलब सारा फोकस है। जिस ड्राइव की बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अक्सर लोग आप न्यूज रूम के जो लीडर्स हैं, न्यूज रूम लीडर्स, अगर उनसे बात करेंगे तो उनका यही रोना रहता है कि हम ड्राइव चलाते हैं लेकिन लोग आते नहीं, लोग हमको नहीं मिलते हैं। ये अपने आप में एक हकीकत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों नहीं मिलते हैं। क्या हमारे न्यूज रूम्स का जो एनवायरनमेंट है, जिसमें हर रोज काम करना है उस व्यक्ति को, क्या वो इतना कंड्यूसिव है कि वो उसमें काम कर सके? जिन मुद्दों पर उसको काम करना है, हम एक नॉन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो उन्हीं मुद्दों पर काम करे जिस पर हम कहते। अगर वो स्टॉक मार्केट को कवर करना चाहता है तो हम उसको स्टॉक मार्केट कवर करने देते हैं। अगर वो चाहता है कि वो आर्ट एंड लिटरेचर कवर करे, तो ये एक मुद्दा है। तो मेरे विचार से 3 समस्याएं हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूं। एक मसला तो थ्योरेटिकल है कि अभी भी हम डाइवर्सिटी को एक टोकनिज्म और चैरिटेबल लेंस से देख रहे हैं, वो एक थ्योरेटिकल मसला है। दूसरा मसला अगर हम बात करें तो वो सिस्टमिक एंड स्ट्रक्चरल है। जो हमारे न्यूज रूम का सिस्टम है, जो जिस तरह का सुबह के सत्र में हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कैसे टीवी जो है वहां चतुर्वर्ण सिस्टम है, तो वो इशू है। और तीसरा है वो प्रैक्टिकल है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल से शुरू करूं कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्राइबल कैंडिडेट को, ट्राइबल जर्नलिस्ट को हायर कर लिया। अब वो जिस माहौल से आता है, उसकी जो पूरी जिंदगी रही है, उसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उतनी ही स्पीड से काम करे जितनी स्पीड से एक अपर कास्ट, मिडिल क्लास फैमिली से कोई आता है, उसी स्पीड से काम करे, उसके सोर्सेज उतने जल्दी ही डेवलप हो जाए, वो उतने ही फैंसी लैंग्वेज में लिखें। मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल इश्यूज है। दूसरा ये है कि अक्सर ये बात आती है कि जो प्रोग्रेसिव न्यूज रूम्स हैं उसमें भी नहीं मिलते हैं, लोग नहीं मिलते हैं। उसका ये प्रॉब्लम यह है कि अगर हम सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव न्यूज रूम्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कहीं 4 स्टाफ है, कहीं 15 स्टाफ है, कहीं, लेकिन उनको भी वॉल्यूम डिलीवर करना है। तो वो ये प्रैक्टिकल इश्यूज है जिसकी तरफ हम आमतौर पर बात करते हैं। मेरा बुनियादी, मैं जो बात कहना चाहूंगा कि कैसे इंश्योर करें, वो तब तक हम इंश्योर नहीं कर सकते न्यूज रूम में डाइवर्सिटी जब तक हम हायरिंग को असल काम समझे। मेरा मानना है कि जिस दिन आप हायरिंग करते हैं उस दिन से आपका काम शुरू होता है, वहां से। और फिर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उस व्यक्ति में जिसको आप लाए हैं, हम कितना टाइम, कितना पेशेंस, कितना एनर्जी देने के लिए तैयार है। हम अक्सर देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एडिटर इन चीफ बना दीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक दलित, ओबीसी या माइनॉरिटी को, आप 6 महीने में
वो मार्केटिंग वाला डंडा आ जाएगा कि ये डिलीवर नहीं हो रहा है, वो डिलीवर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है समय देना पड़ेगा, समय में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब तक, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन सुदीप्तो यहाँ है, सुदीप्तो का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सुदीप्तो जिस तरह से आज अगर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, तो उसके पीछे एक 15 साल की उनकी यात्रा है। अगर उस यात्रा से अगर वो नहीं गुजरते और डायरेक्ट, जस्ट बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दलित कम्युनिटी एंड ही हैज बीन एज एज अ मेजर ऑफ टोकनिज्म, कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का में एग्जीक्यूटिव एडिटर बना दिया गया, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो जिस तरह से आज अपने रिपोर्टर से, अपने स्टाफर से डील कर पा रहे, वो नहीं कर पाते। तो वो स्पेस जब तक हम नहीं देंगे, वो टाइम हम जब तक नहीं देंगे, ये जो चेंज है ये नहीं होगा, और सिर्फ हम बात करते रह जाएंगे। आई थिंक बहुत शुक्रिया। बहुत वाइडर वे में आपने बताया, और प्रैक्टिकल वे में जो बताई हुई चीज़ें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी दिशा में हमारा चर्चा आगे बढ़े कि प्रैक्टिकल वे में हम लोग क्या कर सकते, क्योंकि हम सबको प्रॉब्लम क्या है वो पता है, लेकिन करना क्या चाहिए वो हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है।